आज की क्लास में हम सोशल मीडिया एंड मोबाइल डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। Mobile devices and social media are part of Industry 4.0 because it is the major source of meaningful information for companies that it contain large amount of data. Since the manufacturing environment is leading to real-time transparency, which will be make production control and management process more flexible. मोबाइल डिवाइस और सोशल मीडिया इंडस्ट्री 4.0 का हिस्सा है क्योंकि यह कंपनीज के लिए एक सार्थक जानकारी का प्रमुख सोर्स है जिसमें बड़ी मात्रा में डेटा शामिल है। चूँकि मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट वास्तविक समय की ट्रांसपेरेंसी की ओर अग्रसर है जिससे प्रोडक्शन नियंत्रण हो जाएगा और मैनेजमेंट प्रक्रिया अधिक फ्लेक्सिबल हो जाएगी। The digital transformation can be challenging for the companies. However, many companies are already started their journey to transformation since they provide interactive websites, improved customer service and so on. यह डिजिटल परिवर्तन या डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनीज के लिए चैलेंजिंग हो सकता है। हालांकि कई कंपनीज पहले से ही परिवर्तन के लिए या चेंजेस के लिए अपनी जर्नी शुरू कर रही है क्योंकि वे इंटरैक्टिव वेबसाइट, बेहतर कस्टमर सर्विसेज आदि प्रदान करते हैं। Many web-based social networking sites such as Facebook and Twitter have created mobile applications for giving their user instant and real-time access from anywhere they have access to the internet, and plus the development in the mobile connectivity. Social media refer to the means of interaction among people in any IT industry or any business environment in which they create, share and or exchange information and ideas in virtual communities and network. कई वेब बेस्ड सोशल नेटवर्किंग साइट्स जैसे फेसबुक और ट्विटर ने अपने यूज़र्स को इमीडिएट इंटरनेट और वास्तविक समय में कहीं से भी इंटरनेट एक्सेस देने और मोबाइल कनेक्टिविटी के विकास के लिए मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए हैं। सोशल मीडिया किसी भी आईटी इंडस्ट्री या किसी भी व्यावसायिक वातावरण में लोगों के बीच बातचीत के माध्यम को रेफर करता है जिसमें वे वर्चुअल कम्युनिटीज़ और नेटवर्क में जानकारी और विचारों का निर्माण, शेयर या एक्सचेंज करते हैं। सोशल मीडिया कैन बी ग्रुप्ड इन 6 टाइप। सोशल मीडिया को 6 तरीके के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। Collaborative projects, content communities, virtual game world, blog and microblogs, virtual social world, social networking sites. Popular social networking tools and platforms. Flickr is a photograph management service that allow you to upload and share high quality photos, connect with friends and stay in touch. Flickr also provide easy way to find great images and use social tagging to manage your finds. Flickr एक फ़ोटो और वीडियो होस्टिंग वेबसाइट या ऑनलाइन कम्युनिटी है। इसका उपयोग करके हम फेसबुक और ट्विटर और अन्य सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी फ़ोटो शेयर कर सकते हैं। YouTube और Vimeo, two of the most popular hosting platform today and are YouTube and Vimeo. They both great options for hosting video hosting and watching websites. वीडियो को होस्ट करना और उसे देखने के लिए आजकल हमारे पास YouTube और Vimeo जैसे पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स हैं। Snapchat is a mobile app for Android and iOS devices. It's headed by the co-founder by Ivan. One of the core concept of the app is that any picture or video or messages you send by default is made available to the receiver for only a short time before it become inaccessible. This temporary or ephemeral nature of an app was originally designed to encourage a more natural flow of interactions. स्नैपचैट एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो यूज़र को फ्रेंड्स को या उन स्टोरी पर फोटो या वीडियो भेजने की सुविधा देता है। देखने को 24 आवर्स या उसके बाद फ़ोटो अपने आप ही डिसअपीयर हो जाती है।
Facebook is currently the largest social media sites in the world with 2.6 billion monthly active users as of 2020. It's safe to say that nearly every social media user is on Facebook. So it's an excellent platform for brands to make their products to a huge audience. दुनिया का सबसे बड़ा सोशल नेटवर्क जिसमें 2.6 बिलियन से अधिक मंथली एक्टिव यूज़र्स है। इसमें यूज़र्स एक पर्सनल प्रोफाइल बनाते हैं, अन्य यूज़र्स को फ्रेंड के रूप में जोड़ते हैं और अपनी स्थिति अपडेट सहित मैसेजेस का आदान प्रदान करते हैं, ब्रांड्स पेज बनाते हैं और फेसबुक यूज़र के ब्रांड्स के पेज को पसंद व नापसंद करते हैं। ब्लॉग, अ प्लेटफॉर्म फॉर कैजुअल डायलॉग एंड डिस्कशन ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और ओपिनियंस। किसी विशिष्ट विषय या राय पर कैजुअल डायलॉग या डिसीजंस के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है। LinkedIn group, a place where group of professionals with similar areas of interest can share information and participate in a conversation. LinkedIn group एक ऐसा स्थान है जहां इंटरेस्ट के समान क्षेत्रों वाले प्रोफेशनल्स के ग्रुप जानकारी शेयर कर सकते हैं और बातचीत में भाग ले सकते हैं। Twitter is an online news and social networking sites where people communicate in short messages called tweets. Tweeting is post short messages for anyone who follow you on Twitter with the hope that your words are useful and interesting to someone in your audience. Another description of Twitter and tweeting might be microblogging. यहाँ न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करने, फ्रेंड्स के संपर्क में रहने और ट्वीट के माध्यम से ज्ञात 140 अक्षरों वाले लॉन्ग मैसेजेस का उपयोग करते हुए राय शेयर करने के लिए एक लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग व सामाजिक माध्यम है। Instagram is free online photo sharing application on social media network platform that has acquired by Facebook in 2012. Instagram app users to edit and upload photos and short videos through a mobile app. Each post by a user appear in their followers' Instagram feeds and can also be viewed by the public when tagged using hashtag and geotag. Users also have the opinion of making their profile private so that only their followers can view their post. Instagram एक फ्री फोटो और वीडियो शेयरिंग ऐप है जो यूज़र्स को अपनी फ़ोटोज़ के लिए डिजिटल फ़िल्टर, फ्रेम और विशेष प्रभाव या इफ़ेक्ट लागू करने की सुविधा देता है और उन्हें विभिन्न प्रकार की सामाजिक नेटवर्किंग साइट्स पर शेयर करता है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है ब्लॉकचेन। The blockchain technology typically refer to the transparent, trustless, publicly accessible ledger that allow us to securely transfer the ownership of units of value using public key encryption and proof of work methods. A block in a chain is a collection of data. That data is added to the blocks in blockchain by connecting it with other blocks in chronological order, other creating a chain of blocks linked together. The first block in the chain is called a genesis block. ब्लॉकचेन की डिस्कवरी 1991 में हुई थी, जहां पर एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने ब्लॉकचेन को डिस्कवर किया था और उन्हें वर्ल्ड में ब्लॉकचेन इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की। लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को उस तरह का एक्सपोजर नहीं मिला until 2009 जब सतोशी नाकामोटो ने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज़ करके बिटकॉइन लॉन्च किया। अब हम जानते हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। तो ब्लॉकचेन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ स्टोर ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स ऑल्सो नोन एज द ब्लॉक इन द पब्लिक इन सेवरल डेटाबेस known as the change in a network connected through peer-to-peer nodes. Typically, this storage of refer to a digital ledger. Every transaction in this ledger is authorized by a digital signature of the owner, which authenticates the transaction and safeguard it for tampering. Hence, the information
the digital ledger contained is highly secure. ब्लॉकचेन को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर है, आप इसमें डॉक्यूमेंट्स डालते जाएंगे तो एक टाइम ऐसे आएगा कि वो डॉक्यूमेंट फोल्डर फुल हो जाएगा। जब वो फोल्डर फुल हो जाता है तो हम अपने डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए दूसरा फोल्डर लेकर आएंगे और फिर इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स भरते जाएंगे। इसी प्रकार इसके फुल हो जाने के बाद हम तीसरा फोल्डर लेंगे, तो ऐसे करके एक डॉक्यूमेंट्स की चेन बनती जाएगी। वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर डॉक्यूमेंट्स की जगह ब्लॉक्स होते हैं। ये ब्लॉक डेटा, प्रीवियस हैश और करंट हैश स्टोर करते हैं। अगर हम इसे एक और एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए एक शॉप पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स होते हैं कि कौन सा सामान आया, कौन सा सामान गया, किसके पास आया, कहाँ गया। तो ये रिकॉर्ड की सारी किताब को लेजर या बही खाता कहते हैं। तो ब्लॉकचेन वही बही खाता या लेजर है और उसका हर एक सिंगल रिकॉर्ड एक सिंगल ब्लॉक में है। अब ब्लॉकचेन है ब्लॉक का चेन मीन्स इन रिकॉर्ड्स का चेन। अब अगर एक सिंगल ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक के अंदर कुछ इंफॉर्मेशंस या डेटा स्टोर होता है। पहली चीज जो स्टोर होती है ब्लॉक्स के अंदर वो है रेलेवेंट इंफॉर्मेशन। जैसे बिटकॉइन के लिए स्टोर होगी ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन कि बिटकॉइन किसके पास से आया और किसके पास जा रहा है। तो ऐसे ही अलग अलग यूजेस केसेस के हिसाब से अलग अलग डेटा स्टोर होते हैं। दूसरी चीज जो स्टोर होती है ब्लॉकचेन के अंदर वो है हैश। अब हैश को हम यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह समझ सकते हैं। तो जैसे हम आधार कार्ड के लिए अपने बायोमेट्रिक देते हैं और उसके बाद हमें एक आधार नंबर मिलता है, वैसे ही ब्लॉकचेन के अंदर जो भी डेटा ब्लॉक्स के अंदर स्टोर कर रहे हैं उसके हिसाब से एक यूनिक कोड यानी हैश जनरेट होता है। अब तीसरी इंफॉर्मेशन जो ब्लॉक्स में स्टोर होती है वो हम प्रीवियस ब्लॉक का हैश मीन्स पुराने वाले जो ब्लॉक का हैश था वो अगले वाले ब्लॉक में भी सेव हो जाएगा। अब अगले वाले का उससे अगले वाले में भी सेव हो जाएगा। तो इस तरह से ब्लॉक की एक चेन बन रही होती है और इस चेन के अंदर जो सबसे पहला ब्लॉक जो कि प्रीवियस ब्लॉक का हैश स्टोर नहीं कर रहा है उसे हम कहते हैं जेनेसिस ब्लॉक, जो सबसे पहले बनता है। तो हम एक तरह से ब्लॉक की हिस्ट्री ट्रैक कर पाते हैं, इसलिए इंफॉर्मेशन को ट्रैक करना आसान हो रहा है, सारी इंफॉर्मेशन को यूनिक रखना आसान हो रहा है। ये जो हमारे ब्लॉक ऐड होते जाते हैं इसी को ब्लॉकचेन कहते हैं। एक ब्लॉक की चेन जो कि एक के बाद नए ब्लॉक्स बन रहे हैं लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो हमारा थर्ड ब्लॉक कनेक्टेड है सेकेंड ब्लॉक से, सेकेंड ब्लॉक कनेक्टेड है फर्स्ट ब्लॉक से। अब आप ये मान लीजिए कि कोई गलत इंटेंशन के साथ ये कोशिश करता है कि ब्लॉक के अंदर वो डेटा के साथ डेटा में चेंज कर दे अपने बेनिफिट्स के लिए। तो यहाँ पर ये होगा कि जैसे ही डेटा के अंदर डिटेल्स चेंज करी जाएंगी ऑटोमेटिक जो करंट हैश होगा वो चेंज हो जाएगा और जैसे ही वो चेंज होगा वो आगे के ब्लॉक से मैच नहीं होगा और वहाँ पे ये डिटेक्ट हो जाएगा कि ये जो ब्लॉक है वो इनवैलिड है और यहाँ पर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की गई है। यही एक फीचर है जो ब्लॉकचेन को बहुत सिक्योर बनाता है। 3 pillars of blockchain technology. First, decentralization. The true meaning of decentralization is not having a central unit. Now, if we take this concept in blockchain, it means the blockchain autonomous and does not have a central governing unit. हमारे सामने ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट कुछ समय पहले ही आया है। इससे पहले सेंट्रलाइज सर्विस का इस्तेमाल किया जाता था, जिसका मतलब है कि जब भी आपको कोई जानकारी लेनी है तो आपको वो जानकारी लेने के लिए उस एंटिटी से इंटरैक्ट करना पड़ता था, जिसके बाद वो जानकारी आप तक पहुंचती है।
इसका सबसे इजी एग्जाम्पल है बैंक, जिसमें आप अपने पैसे जमा करते हैं, लेकिन जब भी आपको पैसे किसी दूसरे को भेजने होते हैं तो उसके लिए आपको बैंक से होकर गुजरना पड़ता है। अब यहीं पर अगर हम डिसेंट्रलाइज सिस्टम की बात करें तो इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन किसी सिंगल एंटिटी के पास स्टोर नहीं रहती। यह प्रत्येक नेटवर्क के द्वारा ओन्ड होती है, जिसको कोई भी नेटवर्क देख सकता है लेकिन इसमें इंटरप्रेट नहीं कर सकता। माना अगर आप अपने फ्रेंड को पैसा भेजना चाहते हैं तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सीधे पैसे उसके पास भेज सकते हैं। इसमें आपको किसी भी थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं होती, जैसी टेक्नोलॉजी आजकल बिटकॉइन के लिए यूज की जाती है। ट्रांसपेरेंसी इन रियल लाइफ मीन्स समथिंग with zero opacity. Now if we take this concept in blockchain, it means the blockchain has zero privacy. To be exact when we talk about transaction, all the transactions are public and can be viewed by anyone on the network. Blockchain technology में यह बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब है माना आपने अपने दोस्त को इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से पैसे भेजे, जिसकी जानकारी पूरे नेटवर्क में जाती है कि ए से बी में कुछ ट्रांजैक्शन हुआ, लेकिन इसमें आपकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है। इम्यूटेबिलिटी, here immutable means exactly when the word means in any real life, that means something that cannot be altered. So when we talk about blockchain, it means that once a transaction is pushed into blockchain, it cannot be altered. इम्यूटेबिलिटी का मतलब, इसका मतलब है कि जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में किसी ब्लॉक्स में एंटर करते हैं तो उसके बाद आपको कोई टैम्पर नहीं कर सकता। हाउ इट वर्क, यानी ब्लॉकचेन कैसे काम करता है। A blockchain carries no transaction cost and infrastructure cost, yes, but no transaction cost. The blockchain, in a simple yet ingenious way of passing information from A to B, fully automated and safe manner. यानी अगर हम ब्लॉकचेन जो होता है ये कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैरी नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट को छोड़ के। बिटकॉइन ब्लॉकचेन चलती है प्रूफ ऑफ वर्क के ऊपर, जहां बिटकॉइन नेटवर्क को चलाने के लिए या बिटकॉइन ब्लॉकचेन को चलाने के लिए कंप्यूटिंग पावर की ज़रूरत पड़ती है। ये कंप्यूटिंग पावर मिलती है बिटकॉइन माइनर से, जो जीपीयू ग्राफिक कार्ड यूज़ करके या फिर ईसेट माइनर्स यूज़ करके माइनिंग करते हैं। ये जो माइनर्स बिटकॉइन नेटवर्क से कनेक्ट होकर बिटकॉइन नेटवर्क को कंप्यूटिंग पावर देते हैं, इनको नोड्स भी बोला जाता है और इन्हीं नोड्स के ऊपर पूरी की पूरी बिटकॉइन की चेन भी स्टोर होती है। इसका मतलब है कि दुनिया में जितने भी नोड्स रन हो रहे हैं या जितने भी माइनर्स हैं जो कंप्यूटर्स के थ्रू बिटकॉइन नेटवर्क को पावर दे रहे हैं, उनके कंप्यूटर्स के ऊपर पूरी कंप्लीट बिटकॉइन की ब्लॉकचेन स्टोर होती है। और विद टाइम जैसे जैसे नए ब्लॉक्स बनते हैं वो उसमें ऐड होते रहते हैं और अपडेट होते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, थिंक ऑफ अ रेलवे कंपनी। वी बाय टिकट on an app or a web. The credit card company takes a cut for processing the transaction with blockchain. Not only can the railway operator save on credit card processing fees, it can move the entire ticketing process to the blockchain. The two parties in the transactions are the railway company and the passenger. अगर हम एक रेलवे कंपनी के बारे में सोचें, हम टिकट खरीदते हैं किसी ऐप या वेब पर। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के लिए क्रेडिट कार्ड कंप्यूटर कटौती करती है। ब्लॉकचेन के साथ न केवल रेलवे ऑपरेट क्रेडिट कार्ड प्रोसेसिंग फीस पर बचत कर सकता है, बल्कि यह पूरी टिकट प्रोसेसिंग को ब्लॉकचेन में ट्रांसफ़र कर सकता है। ट्रांजैक्शन में टू पार्टीज रेलवे कंपनी और पैसेंजर हैं। टिकट एक ब्लॉक है जिसे टिकट ब्लॉकचेन में जोड़ा जाएगा। जिस तरह ब्लॉक पर एक मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एक यूनिक इंडिपेंडेंट रूप से वेरीफाइड और ट्रू और सेफ रिकॉर्ड है, उसी तरह आपका टिकट हो सकता है।
लास्ट इंसिडेंटली लास्ट टिकट ब्लॉकचेन एक निश्चित ट्रेन रूट या यहाँ तक कि पूरे ट्रेन नेटवर्क जिसमें कभी भी बेचा गया प्रत्येक टिकट शामिल होता है, हर जर्नी के लिए सभी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। लेकिन मुख्य बात यह है कि यह फ्री है, ना केवल ब्लॉकचेन ट्रांसफर और धन को स्टोर कर सकता है, बल्कि यह उन सभी प्रोसेसेस और बिजनेस मॉडल को भी बदल सकता है जो एक ट्रांजैक्शन या दो अन्य पार्टीज के बीच किसी अन्य ट्रांजैक्शंस के लिए एक छोटा सा चार्ज लगाने पर निर्भर करते हैं। What new applications will be bring us? Blockchain, it gives internet users the ability to authenticate digital information. It provides revolutionary change in new business applications that are described as under. Smart contracts. DTL provides simple codes for a smart contract that will execute when sufficient conditions are met. At the current development level of blockchain technology, smart contracts can be programmed to perform or to develop various types of applications, functions and programs. ब्लॉकचेन इंटरनेट यूजर्स को वैल्यू बनाने और डिजिटल जानकारी को ऑथेंटिकेट करने की क्षमता देता है। जैसे पहला है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी इंडस्ट्री हो, अगर वो हेविली कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती है, जैसे कि इंश्योरेंस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन, एंटरटेनमेंट और लॉ, वो सारी इंडस्ट्रीज इस टेक्नोलॉजी से बेनिफिटेड होंगी, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से बिना किसी डिस्प्यूट्स के आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट को अपडेट, मैनेज, ट्रैक और सिक्योर किया जा सकता है। The sharing economy with companies like Uber and Airbnb for flourishing the share economy is already a proven success. Currently, however, users who wants to hail a ride-sharing services have to rely on intermediary like Uber. By enabling peer-to-peer payments, the blockchain opens the door to direct interaction between parties, a truly decentralized sharing economy result. जब भी कोई वैल्यू बदलते हैं या कोई असेट्स का स्टेटस बदलता है, द शेयरिंग इकोनॉमी, उबर या एयरबब जैसी कंपनीज को फ्लरिशिंग के साथ शेयरिंग इकोनॉमी पहले से ही एक सफल कार्यक्रम है। वर्तमान में हालांकि जो यूज़र राइड शेयरिंग सर्विसेज को बाधित करना चाहते हैं, उन्हें उबर जैसे डिसेंट्रलाइज पर भरोसा करना होगा। क्राउडफंडिंग इनिशिएटिव्स लाइक किकस्टार्टर and GoFundMe are doing the advanced work for the emerging peer-to-peer economy. The popularity of these sites suggests people want to have a direct say in product development. Blockchain take this interest to the next level, potentially creating crowdsourced venture capital funds. Kickstarter एंड GoFundMe जैसी क्राउड फंडिंग पहल उभरती पीर टू पीर इकोनॉमी के लिए एडवांस वर्क कर रही है। इन साइट्स की पॉपुलैरिटी से लोगों को पता चलता है कि वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में सीधे कहना चाहते हैं। ब्लॉकचेन इस इंटरेस्ट को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। गवर्नेंस, बाय मेकिंग द रिजल्ट फुली ट्रांसपेरेंट एंड पब्लिकली एक्सेसिबल, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस टेक्नोलॉजी could bring full transparency to election or any other kind of poll taking. रिजल्ट्स को पूरी तरह ट्रांसपेरेंसी और सार्वजनिक रूप से एक्सेसिबल बनाने से वितरित डेटाबेस टेक्नोलॉजी का चुनाव या किसी अन्य प्रकार के सर्वेक्षण में पूरी ट्रांसपेरेंसी ला सकती है। Supply chain auditing, consumer increasingly want to know that the ethical claim companies make about their products are real. Distributed ledger provide an easy way to certify that the black stories that of things we buy are genuine. Transparency comes with blockchain based time stamping, date and
लोकेशन। जब भी कोई वैल्यू बदलते हैं या कोई असेट्स का स्टेटस बदलता है, तब ये सारे प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ब्लॉकचेन बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। कंज्यूमर तेज़ी से जानता है कि उनके उत्पादों के बारे में एथिकल क्लेम या नैतिक दावे वाली कंपनीज असली है या नहीं। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या प्रमाणित करने का एक आसान तरीका प्रदान करते हैं जो हमारे द्वारा खरीदी गई चीज़ों की पिछली कहानियाँ वास्तविक हैं। File storage. Decentralization file storage on the internet brings clear benefits. Distributing data throughout the network protects file from getting hacked or lost. इंटरनेट पर फाइल स्टोरेज को डिसेंट्रलाइज करने से स्पष्ट लाभ होता है। पूरे नेटवर्क में डेटा डिस्ट्रीब्यूट करना फाइल्स को हैक होने या खो जाने से बचाता है। प्रेडिक्शन मार्केट्स. द क्राउड सोर्सिंग ऑफ प्रेडिक्शंस ऑन इवेंट probability is proven to have a high degree of accuracy. Averaging opinions cancels of the unexamined basis, biases that distort judgment. Prediction markets that pay out according to events outcome and already active. घटना की संभावना पर भविष्यवाणियों यानी प्रेडिक्शंस की क्राउड सोर्सिंग हाई एक्यूरेसी को साबित करती है। असत्य राय या निर्णय को बिगाड़ने वाले अपरिचित पक्षपात को रद्द करती है। घटना के परिणामों के भुगतान करने वाले भविष्यवाणी बाजार से पहले ही अचीव है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. As is well known, digital information can be indefinitely reproduced and distributed widely thanks to the internet. This has given web users globally of free content. However, copyright holders have not been so lucky, losing control over their intellectual property and suffer financially. And as a consequence, smart contracts can protect copyright and automate the sales of creative work online, eliminating the risk of file copying and redistribution. जैसे कि जानते हैं, डिजिटल इन्फॉर्मेशन को असीम रूप से पुनः पेश किया जा सकता है और इंटरनेट के द्वारा व्यापक रूप से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। इसने वेब यूज़र को विश्व स्तर पर मुफ्त मटेरियल की एक सोने की खान दी। हालांकि कॉपीराइट होल्डर इतने भाग्यशाली नहीं रहे हैं जो अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कंट्रोल खो देते हैं और परिणाम स्वरूप आर्थिक रूप से पीड़ित होते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉपीराइट की रक्षा कर सकते हैं और ऑनलाइन क्रिएटिव कार्यों की बिक्री को ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे फाइल कॉपी और रीडिस्ट्रीब्यूशन का जोखिम समाप्त हो सकता है। Internet of Things. The network controlled, managed of certain types of electronic devices. For instance, the monitoring of air temperature in a storage facility. Smart contracts make the automation of remote system management possible. A combination of software sensor and the network facility, an exchange of data between objects and mechanism. The result increases system efficiently and improves cost monitoring. इंटरनेट ऑफ थिंग्स. जैसे कि हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो डिवाइसेस जो इंटरनेट से कनेक्ट होती हैं और उन्हें कहीं से भी मैनेज किया जा सकता है. नेबरहुड माइक्रोग्रिड. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नेबरहुड माइक्रोग्रिड द्वारा उत्पन्न रिन्यूएबल एनर्जी की खरीद और बिक्री को सक्षम बनाती है. जब सोलर पैनल अतिरिक्त एनर्जी बनाते हैं तो इथीरियम बेस्ड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इसे ऑटोमेटिक रूप से रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं. इसी तरह के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशंस में कई अन्य एप्लीकेशंस होंगे क्योंकि आईओटी एक रियलिटी बन जाता है. AML एंड KYC, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर प्रैक्टिसेस को ब्लॉकचेन के अनुकूल होने की प्रबल संभावना है. वर्तमान में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रत्येक नए कस्टमर के लिए एक लेबर इंटेंसिव मल्टी स्टेप प्रोसेस करनी चाहिए.
कॉस्ट इंस्टीट्यूट क्लाइंट वेरिफिकेशन के माध्यम से केवाईसी लागत को कम किया जा सकता है और साथ ही निगरानी और एनालिसिस प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। डेटा मैनेजमेंट। आज अपने निजी डेटा के बदले में लोग फ्री में फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग कर सकते हैं। फ्यूचर में यूजर्स के पास अपनी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ उत्पन्न करने वाले डेटा को मैनेज करने और बेचने की क्षमता होगी, क्योंकि यह आसानी से स्मॉल फ्रैक्शनल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। बिटकॉइन या ऐसा कुछ इस प्रकार के ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग की जाने वाली मुद्रा सबसे अधिक होगी। स्टॉक ट्रेडिंग। शेयर सेटलमेंट के अतिरिक्त पोटेंशियल के लिए संभावित स्टॉक ट्रेडिंग में ब्लॉकचेन के लिए एक मजबूत उपयोग का मामला बनता है। जब पीयर टू पीयर प्रक्रिया एग्जीक्यूट की जाती है तो ट्रेड की पुष्टि लगभग तात्कालिक हो जाती है। क्लियरेंस के लिए 3 दिन के लेने के विपरीत पोटेंशियली इसका अर्थ है मध्यस्थ जैसे कि क्लीनिंग हाउस, ऑडिटर, कस्टोडियन प्रोसेस से हटा दिए जाते हैं। Disadvantages of blockchain. Blockchain use excessive energy. Blockchain अत्यधिक एनर्जी का उपयोग करता है। Blockchain is not a huge distributed computing system. Blockchain एक huge distributed computing system नहीं है। Mining does not provide network security. Mining network security प्रदान नहीं करता। Blockchain entries do not last forever or are not immutable. ब्लॉकचेन एंट्रीज हमेशा के लिए नहीं रहती या अपरिवर्तनीय नहीं है। स्केलेबिलिटी रिमेन ब्लॉकचेन्स वीकनेस। स्केलेबिलिटी ब्लॉकचेन की वीकनेस नहीं हुई। ब्लॉकचेन इज नॉट इंडस्ट्रूसिबल। ब्लॉकचेन इंडस्ट्रूसिबल नहीं है, अविनाशी नहीं है। द एनोनिमस ओपन कैरेक्टर्स ऑफ ब्लॉकचेन इज नॉट एसेट्स। एनोनिमिटी इज नॉट एट ऑल। ब्लॉकचेन का एनोनिमस या ओपन कैरेक्टर एक संपत्ति नहीं है। गुमनामी ही सब कुछ नहीं है। प्रूफ ऑफ वर्क इज ओवर स्किल। काम का प्रूफ ओवर स्किल है। ब्लॉकचेन कैन ब्रीड कॉम्प्लेक्सिटी। ब्लॉकचेन कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर सकता है। ब्लॉकचेन कैन बी हॉरिबली इनएफिशिएंट। ब्लॉकचेन बेहद इनएफिशिएंट हो सकते हैं। तो ये हमारी ब्लॉकचेन थी।